Welcome to my channel. Today we will discuss about motion in a plane. In this chapter today we will discuss about scalar product or dot product. तो ये scalar product या dot product क्या होता है? Earlier in previous lecture I have mentioned कि what is the scalar quantity. तो scalar quantity क्या होती है? Those quantities which having magnitude, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी. तो हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है ये वेक्टर प्रोडक्ट. लाइक वी से कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज एफ डॉट एस. तो एफ इज द वेक्टर, फोर्स इज द वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर, बट देयर प्रोडक्ट इज वर्क डन विच इज द स्केलर क्वांटिटी. तो वही स्केलर प्रोडक्ट आज हमें कंटिन्यू करना है. सो स्टार्ट करते हैं. स्केलर प्रोडक्ट, हाउ वी डिफाइन द टर्म स्केलर प्रोडक्ट. अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड लेट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा दैट इज डिफाइंड एज, हम जस्ट एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, दैट इज A dot B is equals to mod of A into mod of B into cos theta. cos का फुल फॉर्म कोसाइन है, तो इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे. वापस से मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. सो जस्ट वी हैव टू रिमेंबर फॉर डॉट प्रोडक्ट व्हाट इज द फॉर्मूला? A dot B is equals to mod of A into mod of B into cos theta. Mod of A is magnitude of A, mod of B is magnitude of B, and theta is the angle between these two vectors. तो यहीं से हमारा स्टेटमेंट हो गया. वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. वेक्टर्स कौन कौन से हमारे? A and B. So स्केलर प्रोडक्ट ऑफ और डॉट प्रोडक्ट, इसलिए हम लोग ए डॉट बी लिखते हैं, ए डॉट बी. तो डॉट प्रोडक्ट हम बोले या स्केलर प्रोडक्ट. सो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी. तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड हो गया, एंड कोसाइन, कॉस का फुल फॉर्म इज कोसाइन, cosine of the angle between these two vectors. So it is the same statement is over here. Dot product of two vectors is defined as the product of, किसका product? Product of the magnitude of it, the vectors, या magnitude of vector A is A, magnitude of vector B is mod of B, एंड कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है cos, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो इनके बीच का एंगल थीटा है. सो सिंपल वे वी कैन से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट A डॉट B इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा. तो वी आर एज्यूमिंग, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं कि लेट A एंड B, लेट A and B be two vectors and theta be the angle between them. So therefore we can say according to statement, okay, already I mentioned. So therefore we will get, okay, one more thing we can write, and mod of vector A is equals to A and mod of vector B is equals to B, be the magnitude of vector A and B respectively. Okay, so according to statement I have mentioned already कि mod of A, magnitude of A is A,
magnitude of A is A, magnitude of vector B is B. So according to statement, what we can write? Dot product of two vectors, that is A and B, is equals to product of the magnitude of A into magnitude of B का product of magnitude of the vectors and cosine of the angle between them. Simply we can write it as A B cos theta, because I have mentioned mod of vector A is A, mod of vector B is B. Both are the magnitudes. हम चाहे magnitude को ऐसे represent करें या फिर ऐसे represent करें. Both are okay. So A dot B is mod of vector A into mod of vector B into cos theta. This can be written as mod of vector A is A only, mod of vector B is B only, and cos theta. So for further part, we can write one more thing. Let we are assuming, हमने कल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में भी मेंशन किया था, नॉट कल, वी कैन से इन प्रीवियस वीडियो, कि फॉर 3D में 3 डायमेंशंस में x, y एंड z बोथ मीन्स, अगर हम ये बोले x एक्सिस है, ये y है एंड दिस इज z एक्सिस, सो ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो I be the unit vector along x axis, J be the unit vector along y axis and K be the unit vector along z axis. तो I, J, K are the unit vectors. और हमने ये भी बताया था कि what are unit vectors? Unit vectors are those vectors whose magnitude is 1. तो वो हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है, बिकॉज हमें उसका मैग्नीट्यूड पता है कि वो 1 होता है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यूनिट वेक्टर हमें कैसे मिलता है? अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है. तो कोई भी वेक्टर है उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है. तो आई जे के, हियर आई जे के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, I, J and K cap are the unit vectors along x, y and z axis respectively. That part we can write. Let I, J and K be the unit vectors along x, y and z axis respectively. So as I said कि these are the unit vectors. So magnitude of unit vector is always 1, that we can write magnitude, since magnitude of unit vector is 1. So therefore we can write magnitude of unit vector I, that will be same as the magnitude of unit vector j, that will be same as the magnitude of unit vector k, and that will be 1, because we are telling what are the unit vectors, those vectors whose magnitude is 1. तो सबका magnitude क्या है हमारा? 1 है, because these all are the unit vectors. अब हम लोग फिर से इस फार्मूले के हिसाब से according to this dot product, what is A dot B? It is mod of A into mod of B into cos theta. So same way we can find out what will be I dot I. So I dot I. So according to this statement, A dot B is mod of A into mod of B into cos theta. तो अगर मैं यहाँ A के जगह I dot B के जगह I करूँ तो mod of I into mod of I into cos theta will be 0, because I and I both are in same direction. दो बार I ले रहे हैं तो they are along the x axis, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया, because डायरेक्शन दोनों टाइम सेम है. सो cos 0 हो गया. अब हम लोग बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ I is 1, मैग्नीट्यूड ऑफ I is 1 एंड cos 0 ऑफ कोर्स 1 होता है, तो अल्टीमेटली इट विल बी 1. So we can write this will be I dot I will be mod of I
into mod of this I again, because here instead of j we having a b, दोनों के जगह हमारे पास क्या है i और i है, तो mod of i into mod of i into इनके बीच का एंगल कितना है 0 है. And we know mod of I is 1, mod of I is 1. यहाँ पे मैंने मेंशन किया हो mod of I, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर I is 1, तो यहाँ के लिए 1 हो गया, इस I के लिए भी 1 हो गया, एंड cos 0 is of course 1, so we can write it as into 1. So overall it becomes 1. So we can write simple way, what will be I dot I? We can write here I dot I will be 1. I dot I is 1. Similarly, we can write, what we can write, I dot I तो हमने बता दिया कि 1 हो गया. Same way we can write J dot J. J dot J also will be 1. Similarly, K dot K क्या होगा 1 होगा, क्योंकि वापस से मैग्नीट्यूड दोनों के 1 1 है और उनके बीच का एंगल क्या है, लाइक I एंड I के बीच का एंगल 0 है, J एंड J के बीच का एंगल 0 होगा, एंड K एंड K के बीच का भी एंगल 0 होगा. सो वी कैन राइट हियर सिमिलरली I dot I is 1, that is the result of this one. Same way J dot J will be 1, K dot K will be 1, right? So next part, if we wish to find out what will be I dot J, अब जरा हम इस पे गौर करें, what will be I dot J? So we can write I dot J, I have written over here also. So I dot J, तो it will be, what is A dot B? A dot B is mod of A into mod of B into cos theta. तो according to this statement we can write it mod of I into mod of J into cos I and J के बीच का एंगल कितना है, अगर हम यहाँ देखें I and J के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री. So here cos 90 it will be. So just we can write mod of I into mod of I into mod of I into mod of J into cos 90. So it will be mod of I into mod of J into cos 90, because theta, angle between I cap and J cap is 90 degree. And we know mod of I is 1, mod of J is 1 and cos 90 is 0. So overall this will be 0. So we can write I dot J क्या होगा हमारा, I dot J it will be 0, I dot J it is final result is 0, that I have written. Next part we can write, हमने बताया I dot J 0 हो गया because इनके बीच का एंगल 90 हो गया. तो J dot K क्या होगा, it also will be 90 degree, so J dot K will be 0 and K dot I, इनके भी बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है. ऑल 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, x, y and z. तो x and y are perpendicular to each other, y and z are perpendicular to each other, z and x are perpendicular to each other. So we can say I dot j is 0. So same way j dot k it also will be 0 and k dot I it also will be 0. So now we are willing to find out, एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि I dot I क्या आने वाला हमारा, उनके बीच का एंगल 0 आएगा तो 1 आने वाला, J dot J 1 आने वाला है, K dot K 1 आने वाला है, बट I dot J जब एंगल 90 होगा तो सारे केसेस में वैल्यू 0 आने वाला है डॉट प्रोडक्ट में, ये हमें याद रखना है. तो वी आर गोइंग टू टेक नाउ, अभी हम लोग वेक्टर्स लेते हैं. ए वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट्स हैं ax, ay, az आर द मैग्नीट्यूड्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस एंड i, j एंड k be the unit vectors along x, y and z axis respectively. तो वेक्टर को हमने कैसे लिख दिया, ax I
प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये वेक्टर है, वेक्टर ए, ये एक्स अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग का मैग्नीट्यूड है ए का, इसलिए ए सफिक्स एक्स लिखते हैं। ए वाई मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस, ए जेड मैग्नीट्यूड अलोंग जेड एक्सिस, आई जे के टर्म्स में। एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हमें गिवन पार्ट है सपोज, और हमें पूछा कि व्हाट विल बी ए डॉट बी, देन व्हाट वी विल डू, हम सीधा ए डॉट बी करेंगे। तो ए डॉट बी हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ए दिस इज ए पार्ट विच इज हियर, एंड डॉट बी, डॉट इज हियर, डॉट इज हियर, बी के कंपोनेंट्स, so these all are the components of B. so A dot B हम लोग अप्लाई करें, अभी हमें क्या करना रहेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसमें और इसमें करेंगे, फिर AY का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, फिर Z वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन तीनों टर्म में करेंगे, राइट? तो हमें टोटल 9 टर्म्स मिलेंगे, जस्ट वी विल सी। तो पहला टर्म हमारा, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हम एक साथ करते हैं, तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, क्या लिखने वाले हैं, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। सो फर्स्ट टर्म वी विल राइट ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, पहला टर्म हो गया। दूसरा, अभी इसको हम इसके साथ करें, तो ए वाई, सॉरी, इसको हम इसके साथ करें जे वाले टर्म्स के साथ, तो ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, सो प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, प्लस अभी तीसरा टर्म, इसको हम इसके साथ करें, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए एक्स बी जेड आई डॉट के, आई डॉट के, ओके, प्लस अभी नेक्स्ट पार्ट ए वाई का मल्टीप्लिकेशन इसमें, 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 तो क्या होगा, जस्ट वी कैन राइट, क्या लिखेंगे हम, ए वाई का किसके साथ, बी एक्स के साथ, फिर जे डॉट आई, क्या किया हमने, ए वाई बी एक्स के साथ, ए वाई बी एक्स के साथ, और जे डॉट देन आई, अभी जे डॉट जे आएगा इसके साथ, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के, प्लस अभी तीसरा टर्म, इसका इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, so what we'll get, we will get b, no, we'll get az bx k dot I plus az by k dot j plus az bz k dot k, that much we are getting। ये सारा मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। अब जरा देखें यहाँ पे जो हमने रिजल्ट लिखे हुए हैं, हमें रिजल्ट में क्या मिला हुआ है, आई डॉट आई, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है, के डॉट के 1 है। पहले ये टर्म्स हम ढूंढ लें, तो आई डॉट आई इज 1, दिस पार्ट, जे डॉट जे इज 1, जे डॉट जे इज 1, and next is k dot k, that is also 1। apart from these, इसके अलावा बाकी हमें क्या मिलने वाला है, अगर हम देखें तो यहाँ पे टर्म है i डॉट जे, i डॉट जे इज 0, तो ये टर्म 0 हो गया। देन i डॉट k, i डॉट k, k डॉट i विल बी सेम एज द i डॉट k, सो ये 0 है, तो ये भी टर्म 0 हो गया, तो एंटायर टर्म 0, एंटायर टर्म 0। j डॉट i, of course I dot j 0 है, तो j dot i also will be 0 because it is following the commutative law। so ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0 because j dot k है, j dot k is 0, तो ये भी टर्म 0 हो गया।
k डॉट आई ये भी टर्म जीरो हो गया, k डॉट j ये भी टर्म जीरो हो गया, k डॉट j डॉट k इट इज सेम। तो हमारा ये टर्म ये जितना भी मैं ब्लैक से रेड से कर रहा हूँ, ये सारे टर्म्स हमें क्या मिल गए, जीरो मिल गए। तो हमारे पास सिर्फ 3 टर्म्स बचे, कौन से, i डॉट आई ऑलरेडी 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया और k डॉट k 1 हो गया। तो बचा क्या, ax bx, ay by एंड az bz, दैट वी कैन राइट एज अ रिजल्ट। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, ax bx plus ay by plus az bz. So we can write a dot b as it will be ax bx plus ay by plus az bz, right? That is a dot b. ये हमारा a dot b हो गया। नेक्स्ट हमें अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था कि ये i, j एंड k आर द डायरेक्शंस अलोंग x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। दीज ऑल आर द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारे ये हैं तीनों, ये x एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड है, ये y एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड है और ये z एक्सिस के अलोंग मैग्नीट्यूड है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, that is mod of vector a is equals to a and that will be root of square root of, क्या फार्मूला है उसका, तीनों के कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। सो इट इज ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। सेम वे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, वेक्टर b हमारा क्या था, bxi plus byj plus bzk, as we can see vector b was bxi plus byj plus bzk। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ b इज इक्वल्स टू b एंड विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। This is the magnitude of vector A. Now suppose we have to find out the angle between vector A and vector B. तो वापस से by definition of dot product, फिर से मैं बोलूंगा डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या था, A dot B is equals to mod of vector A into mod of vector B into cos theta, right? So on behalf of this हमें cos theta पता है तो theta हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो we can write since A dot B which is given to us, A dot B that is mod of vector A into mod of vector B into cos theta. So therefore theta will be, cos theta will be A dot B upon mod of vector A into mod of vector B. So now we have all the terms, हमने already a dot b निकाला है, this is a dot b and mod of a is this, mod of b is this, so just we can substitute all the terms over here। तो a dot b हमने क्या निकाला हुआ है, a dot b is ax bx plus ay by plus az bz। we can write it cos theta will be a dot b, so a dot b हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, a dot b is ax bx plus ay by plus az bz and mod of vector a is root of, क्या है हमारा mod of vector a, this term root of ax square plus ay square plus az square, so that will be ax square plus ay square plus az square into mod of vector b, mod of vector b is root of this one, we can say mod of vector b is bx square plus by square plus bz square, so it is bx square plus by square plus bz square, this becomes the cos theta। by using this one we can find out the angle, और थीटा अगर हमें चाहिए तो we can write cos inverse of all this part,
राइट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन रिगार्डिंग द क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट. अभी हम लोग एक दो एप्लीकेशंस इसके देख लेते हैं. सो व्हाट वी हैव स्टडी दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे. हमें उसका ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. इसके लिए मैंने दो सम लिया है, न्यूमेरिकल्स हैं. इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई प्लस सी जे प्लस फाइव के एंड वेक्टर बी इज 2i प्लस जे प्लस माइनस के आर परपेंडिकुलर. ऐसा बोला है कि परपेंडिकुलर है दोनों. अगर दोनों परपेंडिकुलर है वेक्टर्स तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? ऑफ कोर्स 90 डिग्री. एंड cos 90 क्या होता है? जीरो. cos 90 जीरो होता है. तो अगर मैं a डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो दिखा दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों परपेंडिकुलर हैं. फिर जो हमें फाइंड आउट करना है दैट वी कैन गेट. ओके, so we can write all the informations whatever are given to us. So given vector A is I, 1i I can write plus cj plus 5k and vector B is given as 2i plus 1j minus 1k. नथिंग इज गिवन तो 1 1 है j एंड k. तो हमें बोला है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c. तो हमें ये भी दिया है कि सिंस वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, सो देयरफॉर आई कैन से थीटा बिकम्स 90 डिग्री एंड वी नो cos 90 is 0. So we can write since a dot b is mod of a into mod of b into cos 90, right? So cos 90 is 0, so entire term will be 0. Since cos 90 is 0, अगर cos 90 0 है तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसका ओवरऑल वैल्यू क्या मिलने वाला है? 0. So what is टू बी फाइंड आउटर्स कि हमें क्या दिखाना है? a डॉट बी ज़ीरो है. ये अगर हम दिखा दें कि a डॉट बी ज़ीरो है तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा. तो वी कैन नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. सो देयरफॉर आई कैन से a के कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं? 1 इंटू आई प्लस सी जे प्लस 5k. ये a के कंपोनेंट्स हैं. मैंने a के जगह इसको लिख दिया. डॉट b लिखूंगा, b के कंपोनेंट्स. तो डॉट b के कंपोनेंट्स क्या है हमारे? b के कंपोनेंट्स 2i प्लस 1j माइनस 1k. सो इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज a डॉट b इज इक्वल्स टू 0. तो a डॉट b इज इक्वल्स टू 0. सो नाउ वी कैन राइट. हम एक चीज हमें पता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है एंड के डॉट के 1 होता है. रेस्ट ऑफ ऑल आर 0. तो हम ax bx, ये देखो ax के जगह है, ax के जगह 1, bx के जगह 2. तो ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये हमारा a डॉट b हो जाएगा. तो हम लोग लिख देते हैं 1 इंटू 2 that is ax bx that is 1 into 2 plus ay c by 1. तो प्लस c into 1 प्लस 5 into minus 1. So 5 into minus 1 is equals to 0. So 2 plus c minus 5 is equals to 0. So 5 minus 3 plus c is equals to 0. So c will be 3. तो हमें c कैलकुलेट करना था. So we get c is equals to 3. Now next, तो इसमें बेसिकली हमें क्या दिखाना पड़ा? a डॉट b इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज a एंड b वर परपेंडिकुलर. वहां से हमने डिसाइड किया, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया.
similar sum is here. Calculate the angle between the vectors a and b. अब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. हमें a के कंपोनेंट्स दिए हैं एंड b के कंपोनेंट्स दिए हैं, a एंड b के कंपोनेंट्स. तो एंगल हमने यहाँ एक फार्मूला निकाला था एंगल के लिए. cos थीटा इज ये a डॉट b था, a डॉट b चाहिए और मॉड ऑफ a चाहिए, मॉड ऑफ b चाहिए. तो हम लोग ये प्रोसीड करते हैं इसके लिए. तो वी कैन राइट, ऑलरेडी a एंड b दिया है तो वी विल राइट a डॉट b फर्स्ट. a डॉट b निकाले हम तो a डॉट b क्या होगा, 2i प्लस 2j माइनस 1k डॉट b के कंपोनेंट्स 6i माइनस 3j प्लस 2k. फिर से मैं रिपीट करूंगा कि हमें i डॉट i 1 मिलता है, j डॉट j 1 मिलता है और k डॉट k 1 मिलता है. रेस्ट ऑफ ऑल टर्म्स आर 0. तो हम बाकी की बात ही नहीं करेंगे. सो वी कैन राइट 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू 2, राइट, माइनस 1 इंटू 2. अब हम सबको सिंप्लीफाई कर ले तो हमें मिला 6 2 ज़ा 12 माइनस 6 minus 2, so it becomes 4. So we get a dot b is equals to 4. this part ये हमें मिला a dot b. हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए क्या चाहिए, cos थीटा अगर चाहिए तो a डॉट b हमने निकाला. अभी और क्या चाहिए, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b. तो मॉड ऑफ वेक्टर a क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर a we can write magnitude of vector a, magnitude of vector a. ये क्या होगा, mod of vector a that will be square root of, इसके जो कंपोनेंट्स है along x y and z उनको हम स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे. ax स्क्वायर, ay स्क्वायर, az स्क्वायर, az यहाँ पे -1 है. सो विल गेट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 1 9, रूट ऑफ 9 विच इज मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू 3. ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a मिल गया. सेम वे वी कैन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, इट विल बी मॉड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू रूट ऑफ b के कंपोनेंट्स. अब हम b के कंपोनेंट्स देखें तो b के कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं, 6i माइनस 3j प्लस 2k. तो उसके कंपोनेंट्स जो 6 माइनस 3 और 2 है, 6 माइनस 3 एंड 2. तो इनका हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो इट विल बी रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 4. सो इट बिकम्स 49, रूट ऑफ 49 एंड रूट ऑफ 49 इज 7. तो मॉड ऑफ b हमें मिल गया 7. अब देखो हमें क्या क्या चाहिए था, अगर cos थीटा हमें चाहिए तो cos थीटा के लिए क्या चाहिए, a डॉट b चाहिए जो ऑलरेडी हमने किया. फिर मॉड ऑफ a निकाला, मॉड ऑफ b निकाला, तो वापस से इसी फार्मूले में हम डाल देते हैं. तो वी कैन राइट सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a into mod of vector b. So it is a dot b already we have calculated, that is 4, and mod of a is 3, mod of b is 7. So 4 by 3 into 7, it will be 4 by 3 into 7, which is 4 by 21. So it is the cos theta is 4 by 21. So therefore theta will be cos inverse of 4 by 21. This we can see by the logbook and we can decide what will be its answer finally. Okay, so this is the way to solve the numericals of dot product. Now we will start. Okay, we have complete this scalar part and now we will discuss about the vector product. Same chapter, motion in plane and vector product or cross product.
तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे बेस्ट पार्ट वी कैन सी, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल वी कैन सी, और इसी का एप्लीकेशन भी रहने वाला है कि जब हम लोग लाइक वी हैव टू मेड होल इन वुड के अंदर, अगर आपने कारपेंटर को होल करते हुए देखा होगा तो एक ऐसा पार्ट पकड़ता है, वो ऐसे घुमाता है, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाता है तो अंदर जाता है वो स्क्रू, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो बाहर आता है, राइट? अंदर बाहर, ये डायरेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस में नेक्स्ट डायरेक्शन मिल जाता है। हम यहाँ एक्स एंड वाई के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हैं, बट वहां जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? दैट इज चेंजिंग इन जेड एक्सिस। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें नेक्स्ट वेक्टर मिलेगा। अनदर एग्जांपल वी कैन सी कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल दिया गया है, दैट इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक राइट हैंडेड है आप, और एक स्क्रू है। स्क्रू को आपको वॉल में फिट करना है, तो आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर जाता है, अंदर इनवर्ड डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो बाहर आता है, राइट? तो जो अंदर का डायरेक्शन है दैट इज नेगेटिव, और जो बाहर का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, राइट? जैसे अगर मैं एक्स वाई एक्सिस की बात करूं तो राइट वाला एक्सिस हमारा पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला नेगेटिव है। वैसे ऊपर का एक्सिस वाई दैट इज पॉजिटिव एंड लोअर एक्सिस इज नेगेटिव। वैसे ही जेड एक्सिस में भी दो पार्ट होता है, एक बाहर की तरफ दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, अंदर की तरफ दैट इज टेकन एज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज जब हम घुमाते हैं स्क्रू को तो अंदर जाता है, इसलिए क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होगा, क्रॉस होगा मतलब दो एक्सिस का क्रॉस होगा, तो हमें थर्ड एक्सिस मिलेगा, तीसरा एक्सिस मिलेगा। अब वो नेगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव मिलेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव मिलने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, बिकॉज क्लॉकवाइज में अंदर है, इनवर्ड का डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, आउटवर्ड का डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। सो दिस ऑल द थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। वही चीजें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और काफी कुछ चीजें हैं जो हमारे स्केलर प्रोडक्ट जैसी हैं, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को मैंने पहले मेंशन किया, और वेक्टर प्रोडक्ट भी मैं साथ में ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को दो अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। सो बोथ द थिंग्स यू कैन कंपेयर एंड यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो वेक्टर प्रोडक्ट और द क्रॉस प्रोडक्ट। जो यहाँ भी स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है कि वेक्टर प्रोडक्ट, आपको इतना याद रखना है, फार्मूला याद है तो स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। फार्मूला क्या है? ए क्रॉस बी, वहां था ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट में, बट हियर वी हैव ए क्रॉस बी, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इज गिवन बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप, कैप लग गया मतलब यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। जो मैंने सिखाया कि अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो जब हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस में, तो जेड एक्सिस अंदर जा रहा है, तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ मिल रहा है? अलॉन्ग जेड एक्सिस, तो थर्ड एक्सिस हमें मिल रहा है अगर हम एक्स और वाई के क्रॉस जा रहे हैं तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। सो दीज ऑल द थिंग्स वी विल राइट। तो ये क्या है? फिर से स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग आ जाएं तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द, वहां पे क्या था? कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। किसमें? डॉट प्रोडक्ट में। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा? साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम in a particular direction because n cap tells the direction of next vector। तो मैंने स्टेटमेंट में वही लिखा है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो a क्रॉस b इज मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा, वही जो यहाँ पे मैंने बोला है
कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, ये पार्ट हो गया। एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन, तो ये एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का। अगर मैं ऐसे बोलूँ ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी इज गिवन बाय दिस, वेयर एन कैप is the unit vector which tells the direction of next vector. So I can write over here n cap is the unit vector which tells the direction of next vector. Okay, so according to statement we have, according to statement of cross product or vector product of the vector product of two vectors or cross product of two vectors is defined as the product of the magnitude of the vectors and sine of the angle between them in a particular direction. This n cap is used for the particular direction. So we can write let I cap, j cap and k cap be the unit vectors along x, y and z axis respectively. यूनिट वेक्टर्स हैं, सो देयरफॉर वी कैन से इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर जे इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर के इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज दे आर द यूनिट वेक्टर्स. एंड फॉर यूनिट वेक्टर्स वी कैन राइट फॉर यूनिट वेक्टर्स उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, दैट ऑलरेडी आई हैव मेंशन. ओके, एंड वंस अगेन आई विल से कि आई, जे एंड के मीन्स एक्स, वाई एंड जेड एक्सिसेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. डायग्राम, ये डायग्राम 3D है, मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, जेड एक्सिस हमें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, एल्दो इट इज परपेंडिकुलर टू दैट, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है. लाइक हमारा जो वॉल का कॉर्नर होता है वो 3D होता है. ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट आई डॉट आई. अगर हम बात करें आई डॉट आई की, सॉरी आई क्रॉस आई, अब हम सब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो आई क्रॉस आई, नॉट डॉट आई, इट इज आई क्रॉस आई. तो आई क्रॉस आई क्या होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ए क्रॉस बी क्या है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर. सो अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन से इंस्टेड ऑफ ए आई है, इंस्टेड ऑफ बी अगेन यूनिट वेक्टर आई है, तो ए डॉट बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड. तो आई एंड जे, आई विल से आई एंड आई का मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू दोनों के बीच का एंगल. फिर से बोल रहा हूँ, आई एंड आई दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, आई तो एक ही है, दूसरा भी आई हमने उधर ही लिया क्योंकि उधर ही लेना पड़ेगा बिकॉज यूनिट वेक्टर हम लोग बात कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस का. तो दो आई के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, और साइन 0 इज 0, वी नो साइन 0 इज 0, तो 0 इंटू एनी टर्म विल बी 0. तो हमें क्या मिलेगा, आई क्रॉस आई विल बी 0. सिमिलरली जे क्रॉस जे, वापस जे और जे के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जे एंड जे के बीच का एंगल 0 हो जाएगा. तो फिर से हमें क्या मिलने वाला है, 0. एंड के क्रॉस के क्या मिलने वाला है, 0, राइट. ये टर्म्स हमें ऑलरेडी पता है. अब फिर हमने बताया कि जब हम लोग सेम टर्म्स का आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के इज 0,
तो जब हम बात करेंगे आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस के का, के क्रॉस आई का एंड सो ऑन, तो हमने बताया था ये पार्ट कि क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था। जब हम स्क्रू को, डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल, और स्क्रू को जब हम ऐसे राइट हैंड से घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होता है, वो अंदर जाता है और अंदर का एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते तो बाहर आता है, बाहर आता है तो उसका डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। ये चीजें हमें अपने दिमाग में रखनी है। तो मैंने वो मेंशन कर दिया है कि फॉर क्लॉकवाइज इट विल बी नेगेटिव, फॉर एंटी क्लॉकवाइज इट विल बी पॉजिटिव। रीजन मैंने बता दिया कि डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल। सो वी कैन डिस्कस नाउ व्हाट विल बी आई क्रॉस के। अब हम लोग पहले यहाँ क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो हम ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो इफ वी विल टॉक अबाउट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो हमें क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी हमने क्या पढ़ा हुआ है, ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहाँ अगर हम देखें तो आई मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ के इंटू साइन आई एंड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंड एन कैप, एन कैप टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। तो हम कैसे जा रहे हैं, आई क्रॉस के जा रहे हैं, उसके बाद वाला नेक्स्ट वेक्टर जे है। सो हमने जे लिख दिया, बट हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं नेक्स्ट वेक्टर। सो इट इज माइनस जे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इट बिकम्स माइनस जे हो गया, राइट। तो सेम वे वी कैन राइट आई क्रॉस के इज इक्वल्स टू माइनस जे, एंड ये तो हमने एक लिया, आई क्रॉस के इज माइनस जे। सेम वे के क्रॉस जे विल बी माइनस आई, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे विल बी माइनस आई। देन नेक्स्ट पार्ट, के क्रॉस जे हमने किया, अभी जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई विल बी माइनस के। सो जे क्रॉस आई विल बी माइनस जे। ये टर्म्स हो गए। अब अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज का, तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसा मोमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमें पॉजिटिव लेना है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बात करें आई क्रॉस जे का, आई क्रॉस जे, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू आई एंड जे के बीच का एंगल 90 डिग्री इंटू एन कैप। ये जो एन कैप का टर्म है ना, एन कैप टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर। तो आई एंड जे के बाद नेक्स्ट वेक्टर क्या आना चाहता है, के। सो विल राइट के। तो अब हम देखें यहाँ पे, तो ये मॉड ऑफ आई इज 1, मॉड ऑफ जे इज 1, साइन 90 इज 1। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 ओवरऑल सबको के से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, के मिल गया। So we get I cross J is K। हमने किया I cross J is K। अभी नेक्स्ट में क्या करें, J cross K will be I। So we can write J cross K will be I, right? J cross K is I, J cross K is I। Now K cross I, what will be K cross I? K cross I will be J, right? K cross I will be J, K cross I will be next vector J। So I have mentioned that part। Now already I have mentioned this one, कि direction of unit vectors in cross product is given by the right hand screw rule। right hand screw rule जब हम घुमाएंगे clockwise, अंदर जाएगा, अंदर का डायरेक्शन नेगेटिव, सो नेक्स्ट वेक्टर नेगेटिव होगा। और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर की तरफ आता है, तो बाहर का डायरेक्शन इज पॉजिटिव, सो डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर विल बी पॉजिटिव, साइन विल बी पॉजिटिव। ओके, अभी इसका एक्सप्लेनेशन है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में लिया था ए डॉट बी, वैसे ही
वी आर टेकिंग लेट ए बी एनी वेक्टर, ये कंपोनेंट्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ए के कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, and bx by bz are the magnitudes of the components of vector b along x y and z axes. i j k क्या है उनके यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये हमें a और b के कंपोनेंट्स दिए हैं, तो a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b, दोनों में डिफरेंस है, ये क्रॉस है डॉट ऐसा होता है, तो a क्रॉस b। अब हम क्या करेंगे, सेम वे पहले 9 टर्म्स जाएंगे हमारे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें, इसका इसमें, डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, रिवर्स हुआ तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ऑल वे विल मल्टीप्लाई। सो हम स्टार्ट करते हैं, ए एक्स का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, बट बीच में क्रॉस है तो क्रॉस लिखना रहेगा, सो इट विल बी ए एक्स बी एक्स, हमने क्या किया, ए एक्स का बी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, आई बीच में क्रॉस आई, सो विल राइट आई क्रॉस आई, प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, प्लस नेक्स्ट टर्म ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, राइट, प्लस नेक्स्ट टर्म, अब हम ए वाई का सब में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें 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 और इसमें, सो करें, सो क्या आया, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ओके, प्लस लास्ट टर्म, अभी इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसमें इसमें, सो व्हाट विल बी नेक्स्ट वन, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के, राइट, यस, ये हम सारे टर्म्स मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ वापस से हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देखें तो हमें मिलता है आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, तो यहाँ 0 वाले जो टर्म्स हैं हम उसको सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं, तो आई क्रॉस आई 0 है, जे क्रॉस जे 0 है एंड के क्रॉस के 0 है, सो दीज 3 टर्म्स वी गेट एज 0, ये हमारे 0 हो गए। नेक्स्ट, तो हम ये 3 टर्म्स नहीं लिखेंगे, अब देखते हैं कि यहाँ पे i क्रॉस j है, सब हम यहीं से डिसाइड करेंगे, i क्रॉस j कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज, नेगेटिव। i क्रॉस j देखें तो i क्रॉस j एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो k आएगा, प्लस k, तो इसके जगह हम k लिख देंगे, प्लस k, सो a x b y k, instead of this we will write k, so we'll get ax bx यूनिट वेक्टर k, ये टर्म हो गया, सॉरी ax by था, नॉट ax by, ax by k हो गया। नेक्स्ट अभी ये टर्म देखें, ये वाला ax bz, i क्रॉस k पहले डिसाइड करते हैं, i क्रॉस k जा रहे हैं हम लोग, तो ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में नेक्स्ट वेक्टर तो आएगा लेकिन वो नेगेटिव होगा, तो माइनस जे आएगा यहाँ पे। अब हमने पहले यहाँ डिसाइड कर लिया माइनस जे आएगा, इस माइनस जे को, माइनस को मैं यहाँ पे रखता हूँ और जे इसके साथ रख देता हूँ, तो माइनस ए एक्स बी जेड जे, माइनस ए एक्स बी जेड जे, अब ये भी टर्म हो गया हमारा। अब हम इस टर्म के बारे में बात करें तो j क्रॉस आई है, j क्रॉस आई, j क्रॉस आई हम ऐसा चल रहे हैं, तो ऐसा चल रहे हैं मतलब कैसा चल रहे हैं, क्लॉकवाइज है,
क्लॉकवाइज में नेगेटिव, तो जे क्रॉस आई के बाद क्या आने वाला है के, बट माइनस में आएगा, सो माइनस के ये हो जाएगा, और ये सेम टर्म, सो ए वाई बी एक्स माइनस आया तो माइनस ए वाई बी एक्स, और जे क्रॉस आई की जगह के मिल गया, प्लस अभी ये भी टर्म हो गया हमारा, दिस टर्म वी डिड, ये ऑलरेडी ज़ीरो हो गया। अब जे क्रॉस के का टर्म देखें, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ये कैसे चल रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, तो जे क्रॉस के बाद क्या आएगा, आई आएगा, सो यहाँ क्या आ जाएगा, आई, सो जे क्रॉस के जगह आई आ जाएगा, और पॉजिटिव तो ए वाई बी जेड आई, ए वाई बी जेड आई, जे क्रॉस के इज आई। नेक्स्ट पार्ट दिस टर्म के क्रॉस आई देखें, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई विल बी जे, के क्रॉस आई विल बी जे, तो के क्रॉस आई विल बी जे, तो प्लस जे रहने वाला, और ए जेड बी एक्स, सो प्लस ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई इज जे, ओके। देन लास्ट टर्म दिस वन के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, अब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस आई आने वाला है, सो ये टर्म माइनस आई हो जाएगा, सो माइनस ए जेड बी वाई आई, माइनस ए जेड बी वाई आई, और ये वाला टर्म का क्या हुआ, के क्रॉस के इज ज़ीरो, सो विल नॉट गेट एनी टर्म, सो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन हमें ये मिला। अब हम यहाँ पे एक काम करें, आई के कंपोनेंट्स एक साथ रखें, जे के कंपोनेंट्स एक साथ रखें, और के कंपोनेंट्स एक साथ रखें। सो आई के कंपोनेंट्स कौन कौन से, पहले ये टर्म लिखता हूं मैं, आई के कंपोनेंट्स, सो ए वाई आई कंपोनेंट ए वाई बी एक्स है, आई थिंक सो, ये पहला ज़ीरो हो गया तो लिखा नहीं, दूसरा ये टर्म है, तीसरा ये टर्म है, चौथा ये टर्म है, ये ज़ीरो हो गया तो लिखा नहीं, फिर नेक्स्ट वन ये टर्म है, ए वाई बी जेड है, ए वाई बी जेड है, वो भूल गए थे हम लोग, रेस्ट ऑफ ऑल आर फाइन। तो आई के कंपोनेंट्स, सो विल स्टार्ट विद द ए वाई बी जेड आई, पहले ये टर्म लिख दिया, माइनस ये वाला टर्म ए जेड बी वाई, माइनस ए जेड बी वाई आई, देन प्लस, प्लस नहीं है माइनस में है, जे वाला टर्म, जे वाले टर्म्स को एक साथ लिखना है, तो जे वाला टर्म हमारा क्या है, जे वाला टर्म माइनस ए एक्स बी जेड जे, और फिर ये टर्म प्लस में है, इसको प्लस में लिख देते हैं, प्लस ए जेड बी एक्स जे, प्लस के वाले टर्म्स एक ये है और एक ये है, तो ये टर्म माइनस ये टर्म, तो के वाले टर्म्स ए एक्स बी वाई के माइनस ए वाई बी एक्स के। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, यहाँ आई कॉमन है, इन दोनों में जे कॉमन है, इन दोनों में के कॉमन है, तो दैट वी कैन राइट, सो आई विल टेक आउट कॉमन, तो विल गेट ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड, सॉरी इट इज ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई, देन माइनस जे, यहाँ सेंटर में लिखता हूँ मैं इसको, आई कॉमन लिया तो क्या बचा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, देन माइनस जे, अभी इसमें माइनस, ये पहला टर्म माइनस में है इसलिए माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस जे, माइनस जे अगर कॉमन लूँगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये तो
ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी ax bz माइनस az bx, देन प्लस k, नेक्स्ट पार्ट में k कॉमन ले लेते हैं, एज विल टेक आउट k कॉमन, व्हाट विल गेट ax by माइनस ay bx, ax by माइनस ay bx, ay bx, ay bx, ax by minus ay bx. This become the final expression for a cross b. तो a cross b हमें इतना मिलेगा, that we have to remember. Okay. Now next part is a cross b का हमें लगा कि ये मेथड बहुत लेंदी है, इतना कर पाना थोड़ा डेफिनेटली लेंदी है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसका एक अल्टरनेट मेथड है विच इज़ कॉल्ड द डिटर्मिनेंट मेथड. मैथ्स में एक मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड. बाय यूजिंग दैट डिटर्मिनेंट मेथड हम लोग ये अल्टरनेट मेथड कर सकते हैं. तो ये गिवन वेक्टर्स हमें ऑलरेडी दिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, एंड वेक्टर बी इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, जैसा पहले था. तो a क्रॉस b अगर हमें निकालना है तो हम लोग यहाँ i j k ऐसा लिखते हैं डिटर्मिनेंट में, इनडिटर्मिनेंट आई एम राइटिंग. इसका ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ऑपरेट करते हैं इसको कैसे, प्लस माइनस प्लस ऐसा लेते हैं. अभी आपको फिलहाल मैथ्स के डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बता रहा हूँ प्लस माइनस प्लस ऐसे ऑपरेट करना है. अब यहाँ आई जे के, ए के लिए कंपोनेंट्स क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड. तो आई के नीचे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई एंड के नीचे ए जेड. तो दैट वी कैन राइट ए एक्स ए वाई ए जेड. एंड बी के कंपोनेंट्स क्या है हमारे, बी एक्स बी वाई एंड बी जेड. तो डिटर्मिनेंट हमें मालूम है कि हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमें. तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए वही जो अपना नॉर्मल मेथड है दैट विल अप्लाई. तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालने के लिए आई पहले लेंगे, फिर जिस एलिमेंट को लिया इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचे. तो मैं यहाँ पे आई लेने वाला हूँ, फिर उस रो को और उस कॉलम को छोड़ दूंगा. तो उस रो को और कॉलम को छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचता है, ये टर्म, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, राइट. देन माइनस जे, दूसरा टर्म क्या लेंगे, माइनस जे, ये वाला, यहाँ प्लस आई लिया था, अब माइनस जे. तो वापस से जिस रो में जे है उस रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे. तो जे यहाँ पे है, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो 4 एलिमेंट बचे, ये 4, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड. फिर नेक्स्ट पार्ट में हम सी वाला पार्ट देखें, मतलब थर्ड वन के वाला पार्ट. तो प्लस के लेना है, और वापस से प्लस के लेंगे तो ये कॉलम चला जाएगा और ये रो चला जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे. सो प्लस के एंड वी आर गेटिंग, प्लस के लिया तो ए एक्स ए वाई एंड बी एक्स बी वाई, राइट. इसके आगे का पार्ट क्या करना होता है हमें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का, और फिर माइनस करेंगे फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, राइट. दैट इज द वे टू फाइंड आउट. तो फाइनली वी कैन राइट इट एज आई, जो यहाँ पे है दिस आई, उसके बाद
ए वाई बी जेड, ऐसा मल्टीप्लीकेशन, माइनस बी वाई ए जेड. सो वी कैन राइट ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई. देन माइनस जे, दूसरा वाला कंपोनेंट, माइनस जे लिया तो वापस इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स. सो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के, लास्ट टर्म, के टर्म अगर हमने लिया तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स बी वाई इसके साथ माइनस ए वाई बी एक्स. सो we will get what, ax by minus ay bx. Okay, so ultimately we get what we want from this part. तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वही मिला है जो यहाँ पे था. We get this term only but by very shortcut way. तो हम हमेशा जब हमें a क्रॉस b फाइंड आउट करना रहेगा for solving numericals, then we have to apply what, that determinant method or we can say alternate method. अच्छा, अब यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ पे भी अगर हमें एंगल निकालना हुआ तो हाउ विल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स. तो वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए आई हैव रिटन, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होने वाला है, इट विल बी रूट ऑफ, सिंपल वे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बिकॉज दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स. एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये क्या होगा, दैट विल बी रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, राइट. और हमें ऑलरेडी पता है, वैसे जैसे मैंने उसमें कॉस थीटा निकाला था, यहाँ साइन थीटा निकाला. ए क्रॉस बी इज मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप होता है. तो अगर मुझे साइन थीटा चाहिए तो इट विल बी ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू एन कैप, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू एन कैप. नाउ ये वेक्टर है और वेक्टर को अगर हम डायरेक्शन से डिवाइड कर देंगे, व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज द डायरेक्शन, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ नेक्स्ट वेक्टर. तो इफ एनी वेक्टर ए क्रॉस बी इज डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर देन इट गिव अस मैग्नीट्यूड. तो हम इसका मॉड लगा देंगे बाद में. सो जब ये हमने रिमूव किया यहाँ से तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, बिकॉज एनी वेक्टर, ये प्रोडक्ट जो है वेक्टर है, आई जे के टर्म्स हैं इसमें, इसलिए हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी अपॉन डायरेक्शन, वेक्टर अपॉन डायरेक्शन विल गिव अस मैग्नीट्यूड. तो इस पूरे पार्ट को हम मॉड लगा दिया. एंड ऑफ कोर्स दिस टर्म वी हैव, यहाँ मैंने रीजन मेंशन किया हुआ है कि वेक्टर divided by unit vector will give us magnitude, because any vector is represented in terms of magnitude and direction. तो किसी वेक्टर को अगर हम डायरेक्शन से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, मैग्नीट्यूड. तो ये मैग्नीट्यूड मिल गया. ओके, तो अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो विल फाइंड आउट दिस वे. ए क्रॉस बी ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज हियर, एंड इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा तो इस पार्ट का हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कर लेंगे. एंड मॉड ऑफ ए ऑलरेडी हमने निकाला है, मॉड ऑफ बी निकाला है, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, सो वी कैन फाइंड आउट. ओके, सो नाउ वी विल डू टू न्यूमेरिकल्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट. सो वी हैव प्रूव दैट वेक्टर ए and vector b are parallel to each other. If two vectors are parallel, तो parallel हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया. And what is cos 0? What is sin 0? Sin 0 is 0. मतलब sin क्यों बोल रहा हूँ मैं, because I am interested to find out the cross product. तो अगर हम दोनों वेक्टर्स जो हमें दिए हैं a and b,
इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं ए क्रॉस बी, तो ये आता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल जीरो हो गया, और साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, सो एंटायर टर्म जीरो। हम ये दिखा दें कि ए क्रॉस बी अगर जीरो है देन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। सो वी कैन से, यहाँ पे हमें ए और बी के कंपोनेंट्स ऑलरेडी दिए हैं, तो फॉर पैरेलल थिंग्स वी कैन से इफ ए एंड बी are parallel, therefore theta will be 0 and we know sin 0 is 0, so therefore a cross b will be 0। अब यहाँ रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, या दे भी सकते हैं, since a cross b is mod of a इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, तो साइन जीरो इज ज़ीरो इंटू एन कैप, सो साइन जीरो इज ज़ीरो, सो एंटायर पार्ट विल बी ज़ीरो। तो हमें ये दिखाना है कि ए क्रॉस बी इज़ ज़ीरो, ये हमारा मेन पार्ट हो गया कि वी हैव टू शो दैट ए क्रॉस बी इज़ ज़ीरो इफ़ ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम दिखा दें देयरफॉर ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, अब वही है नॉर्मल मेथड नहीं, determinant method, we will apply the determinant method, then I J K and इनके components A and B के, तो A and B के components क्या है हमारे, A and B के components 4 3 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो A के components 4 3 1, B के components 12 9 and 3, और ऑपरेट कैसे करना है इनको, प्लस माइनस प्लस। सो जस्ट वी कैन राइट इट एज, लिख दें हम लोग, तो आई ले लेते हैं, आई लिया तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 1 ज़ा 9, सो डायरेक्टली वी विल राइट 9 माइनस 9 माइनस जे, अब जे वाला टर्म ले लिया, जे वाला टर्म, तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये 4 बचे हमारे पास, ये 4, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 1 ज़ा 12, सो 12 माइनस 12 प्लस के कैप। अब के वाला एलिमेंट लिया तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, तो 4 9 ज़ा, ये 4 बचे ना, 4 9 ज़ा 36 माइनस 12 3 ज़ा 36, सो 36 माइनस 36, तो सभी केसेस में हमें क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली 0। सो वी आर गेटिंग ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0, सिंस ए क्रॉस बी इज 0 देयरफॉर ए is parallel to vector B. This we prove. Now another sum is here. If vectors A and B is this I plus 3j plus 2k and vector B is 3i plus j plus 2k, then find the value of A cross B. हमें सीधा सीधा A cross B निकालना है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं A cross B will be mod this determinant method we will apply, तो we'll write I j k and components डाल दें हम लोग, components क्या क्या हमारे, what are the components, A के 1 3 2, so 1 3 2, B के components 3 1 2, so वो नॉर्मल मेथड अपना अप्लाई करते हैं, तो ऑपरेट कैसे करना है, प्लस माइनस प्लस, सो I लिया तो ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, सो 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2, 6 माइनस 2 6 माइनस 2 माइनस जे, अब जे कॉमन लिया, जे वाला पार्ट लिया, तो ये रो और कॉलम चला गया, कॉलम एंड रो, सो 1 2 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 माइनस 6, सो वी आर गेटिंग 2 माइनस 6 प्लस
के वाला टर्म लिया तो ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, सो 1 माइनस 9, 1 माइनस 9. सो वी आर गेटिंग इट एज, देख लें, 6 माइनस 2 इज़ 4, तो 4 इंटू आई इज़ 4i, सो वी आर गेटिंग 4i. देन 2 माइनस 6 इज़ माइनस 4, 2 माइनस 6 इज़ माइनस 4, और माइनस 4 इंटू माइनस 1 तो प्लस 4j, प्लस 4j, प्लस 4j. एंड k का टर्म 1 माइनस 9 इज माइनस 8, माइनस 1 इंटू k, सो माइनस 8k, माइनस 8k, दैट इज a क्रॉस b. ओके, सो वी गेट द a क्रॉस b. Okay, so in today's lecture we complete cross product and dot product, which is the part of what, which is the part of motion in a plane. I think so. आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. एंड यू कैन कमेंट आल्सो, और आप लोग कमेंट में ये मेंशन कर सकते हैं कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.